Good morning, students. Welcome to social science class. Today we are going to start chapter 17, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principle of State Policies. In our previous chapter, we have discussed that some ideals are written in the preamble like justice, freedom, fraternity. Okay. So, is it only written in the constitution, or in real we are feeling that we are having these things in reality also? It is necessary that whatever is written in the constitution must be used in the real life. So, our constitution framers tried to do this thing. They tried to transform the ideals given in the preamble into reality. That would not have been possible without granting some fundamental rights to the people of India without any discrimination. It means our constitution has given us some fundamental rights and fundamental duties to perform. जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, इक्वलिटी है हमारे पास और फ्रीडम टू रिलीजन है, वो रियल में होना नेसेसरी है. और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, दे गेव अस फंडामेंटल राइट्स. वी गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड. And when we were under the British, we felt discrimination, and there was a fear in our mind. Illiteracy was there. So many exploitations, so many fear, different type of fears are there. So our constitution framers tried to overcome all these things. After a long period of slavery and exploitation at the hand of Britishers, people aspired for a life where the mind is without fear, head is held high, education is free and for all, where every citizen has the freedom of religion and faith, where the sole aim of the government is welfare of the people, especially of the downtrodden. Now, what people wanted from the constitution framers? They wanted to live a good life. That must be without any fear, any exploitation, any discrimination. People wanted education for all, and they want from our government that our government must work for the welfare of the people of the country. अब इतने सालों की एक्सप्लॉयटेशन, इतने सालों का डर, डिफरेंट टाइप का एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन, इन सब से इंडियंस परेशान हो चुके थे. और वो फ्रेमवर्कर्स से क्या चाहते थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनसे क्या चाहते थे? दे जस्ट वांट अ गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ हो जहाँ पर वो फ्रीली रह सकें, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकें, किसी भी वर्क को कर सकें, एजुकेशन सबके लिए फ्री हो, सबका एक अच्छा स्टेटस हो, लाइफ हो अच्छी. ठीक है. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स प्रोवाइड अस सम फंडामेंटल राइट्स and they also instruct the state to do the work for the welfare of the people. यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी गिवन हैं जिससे स्टेट को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करें. फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही गिवन हमें, बट उसके साथ साथ स्टेट को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि लोगों के वेलफेयर के लिए क्या वर्क किया जाना चाहिए, जिससे लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों की वर्किंग और ज़्यादा अच्छी हो सके.
So let's discuss fundamental right first. Firstly, the question is that what is fundamental right? Fundamental rights are the rights those are necessary for the development of each and every person, of an individual you can say. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं, they consider essential for the development of the personality of every individual and to preserve human dignity. वो राइट्स, वो अधिकार जो एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उसे अच्छे से डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए ज़रूरी है. दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स. These are the essential element of democracy. Britishers had not given us the proper political rights or the civil rights. Every time they just did the discrimination with us. So our constitution framers provide us fundamental rights, and these fundamental rights are given to every citizen of our country without any discrimination. So there are 6 fundamental rights. First is right to equality, next is right to freedom, then right against exploitation, fourth is right to freedom of religion, fifth cultural and educational right, and sixth is right to constitutional remedies. So there are 6 fundamental rights. How many fundamental rights are there? There are 6 fundamental rights. Okay. Now let's read Constitution. Do you know the Constitution of India also provided for the right to property as a fundamental right. 1947 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, then right to property is also mentioned as the fundamental right. इसे भी एक fundamental right बनाया गया था, but in 1978 it was removed from that fundamental rights list. इसे fundamental right की लिस्ट से हटा दिया गया. 44th amendment थी, चेंजेस जब किए गए 44th amendment था in 1978, and right to property was removed from the list of fundamental rights. Okay, which right was removed from the fundamental right? Right to property. ठीक है, 44th amendment हुई थी 1978 में, तब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल राइट्स. हियर इज द फर्स्ट वन, राइट टू इक्वलिटी. इक्वलिटी मीन्स इक्वल होना, समान होना, एक जैसा रहना. ओके, तो राइट टू इक्वलिटी में क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ. फर्स्ट वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ. इट मीन्स everyone is equal in front of law. If a person do a crime, then he or she was punished. ठीक है, और सेम रहेगा. ऐसा नहीं है कि किसी रिच पर्सन ने कोई क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या किसी पुअर ने किया तो उसे मिलेगी. ठीक है, एवरीथिंग इज प्रॉपर इन अ प्रॉपर मैनर, कि प्रॉपरली पनिशमेंट दी जाएगी फॉर द क्राइम. जैसा क्राइम होगा उसके अकॉर्डिंगली ही पनिशमेंट दी जाएगी. ओके, तो फर्स्ट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सभी लॉ के सामने इक्वल हैं. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इट मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कलर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. और अगर प्लेस देखा जाए कि कोई पर्सन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है या किस प्लेस से बिलोंग करता है, उस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment.
when government is going to appoint any person for the post, any post, तो वहाँ पर भी equal opportunities are given to the people. Okay, if there are some post for the clerk or for any other public office, कोई भी हो सकती है पोस्ट, तो वहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट यहाँ क्या क्वेश्चन आता है कि जो डिज़र्विंग होगा, जो क्वालिफाइड होगा, जो डिज़र्विंग होगा, ओनली दैट कैंडिडेट वुड गेट द जॉब. ठीक है, बट अपॉर्चुनिटी है सबके पास, सब मेहनत कर सकते हैं, सब अच्छा वर्क कर सकते हैं वो जॉब पाने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, और उससे भी पहले अर्लियर टाइम में देयर वाज एन इविल दैट इज कॉल्ड अनटचेबल. अनटचेबिलिटी की एक इविल थी, एक गलत जो एक कल्चर था वो स्टार्ट हो चुका था कि कुछ लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं या ये छोटी जात के हैं तो इनको टच नहीं करना, इनके साथ बैठना ही नहीं है, इनके घर का खाना नहीं है. तो इस तरह से वो अनटचेबिलिटी का जो एक कल्चर चलता आ रहा था. ठीक है, सो आवर गवर्नमेंट अबॉलिश दैट कल्चर. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसे अबॉलिश किया, उसे ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट इज abolition of titles. It means titles will not be given to any of the citizen. कोई किसी भी तरह का, ब्रिटिशर्स ने टाइटल्स देने स्टार्ट कर दिए थे, सर और डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटल्स. ठीक है, तो जो भी उनको ग्रेट पर्सन लगता था या जिसको भी उन्होंने अपने साथ करना था तो उसे उन्होंने टाइटल्स देना, एक रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया था. तो उससे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो अब हमारे इंडियंस ने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि किसी को कोई पर्टिकुलर टाइटल नहीं दिया जाएगा. ओके, सो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. ओके, सो दिस इज अबाउट राइट टू equality. Again, कि everyone is equal before law, there is no discrimination on the basis of religion, caste, race, gender or place of birth. Everybody get equal opportunity in matter of public employment. टचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया और टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया. ओके, सो दीज आर द 5 मेजर पॉइंट्स ऑफ राइट टू इक्वलिटी. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें हर तरह का फ्रीडम है. वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग. ठीक है, व्हेन वी कैन स्पीक वट एवर वी वांट. तो फ्रीडम है हमें कुछ भी बोलने का, स्पीच देने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का. नेक्स्ट, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. विदाउट आर्म्स मीन्स विदाउट वेपन. वी कैन असेंबल एट एनी प्लेस. जैसे हम कहीं भी मैरिजेस में असेंबल होते हैं या किसी रैली में असेंबल हो रहे हैं या किसी और कॉन्सर्ट में असेंबल हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ असेंबलिंग्स आर देयर. तो पीपल कैन असेंबल एनीवेयर पीसफुली. बहुत पीसफुली असेंबल होंगे आप, बहुत पीसफुली इकट्ठा होंगे विदाउट आर्म्स. आपके पास वेपन्स नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस. यू कैन फॉर्म यूनियंस, जैसे होता है लेबर यूनियन होती है, स्टूडेंट यूनियन, टीचर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन. ठीक, तो आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं. दैट इज़ द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस. बट टेररिज्म के लिए आप कोई भी एसोसिएशन या यूनियन नहीं बना सकते. ओके, फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट throughout the territory of India. We can move freely in our country. अगर हमें फॉरेन जाना है, if we want to go to another country, we need visa, we need passport. But if we are moving in our country, we don't need this type of things. हमें ऐसी किसी भी चीज़ की वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है. We can move freely throughout the टेरिटरी ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया में कहीं भी हम घूम सकते हैं. हाँ, कुछ सिक्योरिटी जो मेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें सिक्योरिटी के कारण दूर रखा जाता है, अलग से रखा जाता है, जैसे डिफेंस के रिगार्डिंग, तो वहाँ नहीं हम जा सकते. अदरवाइज़ इन
all part of our country we are free to move. Okay, freedom to reside and settle in any part of our country. हम अपनी कंट्री में किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में जाकर रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं. If we are the resident of हरियाणा और पंजाब, we can go to केरला और तमिलनाडु और यूपी, एमपी, कहीं भी जा सकते हैं एंड वी कैन सेटल ओवर देयर. हम वहाँ जॉब कर सकते हैं, हम वहाँ बिजनेस कर सकते हैं. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. हमें फ्रीडम है कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड वर्क कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. ओके, तो दीज आर द राइट टू freedom. We can express our views, we can assemble peacefully without arms, we can form associations or unions, we can move freely throughout the territory of India, we can reside anywhere in our country, and we can practice any profession. Okay, so these are the right to freedom. Right to freedom also include the following provisions: protection in respect of conviction for an offense, protection of life and personal liberty, protection against arbitrary arrest and detention, and right to education. Firstly, we have discussed 6 points for the right to freedom कि हमें अपने express कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी profession ले सकते हैं. Now there are some other provisions. What are these? कि we can protect ourselves. If we found anyone found guilty of an offense, किसी भी क्राइम के लिए किसी को गिल्टी बोला जाता है तो भी वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है. ये भी हमारे पास राइट है. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी लाइफ के लिए हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये फ्रीडम है. और हमारी अगर कोई फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है उसे, तो वी कैन वर्क फॉर आवर पर्सनल लिबर्टी. हमारे अपनी लिबर्टी के लिए, हमारे अपने पर्सनल फ्रीडम के लिए हम वर्क कर सकते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट मीन्स कोई ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से हमें किसी जगह पर बंद करके नहीं रख सकता, हमें अरेस्ट नहीं कर सकता. एंड डिटेंशन मतलब नज़रबंद कर देना, किसी को मिलने ना देना, किसी से देखने ना देना. तो हमें प्रोटेक्शन है, मिली है हमें प्रोटेक्शन. वी हैव अ राइट टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दिस इफ़ समवन अरेस्टेड अस, और हमें नज़रबंद कर दें, डिटेंशन हो, उसके लिए हमारे पास राइट्स हैं. राइट टू एजुकेशन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम. ओके, तो राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002 फॉर द फर्स्ट टाइम. 2002 में फर्स्ट टाइम राइट टू एजुकेशन ऐड किया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं उन्हें फ्री एजुकेशन देने का, कंपल्सरी एजुकेशन देने का राइट पास किया गया. ओके, so these are the two rights, right to equality and right to freedom. The next rights we will discuss in our next video. So that's it for today's video. Thank you and have a nice day.